with the solid, or what we should say, behavior of electrons within a solid. How does electrons behave inside a material? And specifically, we will be talking about periodic solids. So these are the contents of this unit, where first this topic of this unit will be actually covering brief overview of this Drude's model. This model you have been studying since your +2, I think. From lower classes, this model is introduced, but I will be highlighting its key importance in what we are going to follow up in the next parts of this lecture. Then we shall be talking about Sommerfeld model and what is the role of this Fermi-Dirac distribution function. This is very important function, specifically while discussing the properties of solids. So what is this Fermi-Dirac distribution function? How this is related to the properties of different kind of properties of a material. So this has a key role to play in conductivity, optics, and a lot of many other things. So we shall be talking about this Fermi-Dirac distribution function. Then what is the effect of temperature on Fermi-Dirac distribution function? That's why this is exclusively put here in condensed matter physics. Although you would have studied this Fermi-Dirac distribution function in other courses as well as specifically in statistical mechanics, even in undergraduate level, we do study this Fermi-Dirac distribution function. But why this is repeating here in condensed matter physics? Because of its crucial importance in the properties of condensed matter systems. Specifically, we will be interested in materials and rather periodic materials or crystalline materials. Then we will be talking about free electron gas in 3 dimensions. So, Sommerfeld theory, it is first discussed in 1D, then we can generalize this to 3-dimensional case, and then study very important concepts like electronic density of states. One fine day, I think, one of the students asked about density of states, so we will be talking that here. And Fermi energy, what are these various things? Fermi energy, Fermi momentum, etc., etc. And then we just have seen heat capacity of a solid due to atomic vibrations, correct? So we will also see then that in case of metal, so this unit mainly is actually concerned with the metals. Why metals? Because we're talking of electron gas, free electron gas. So basically, wherever we have free electrons in a material, we have to proceed through this kind of formalism to understand the materials having free electrons, or we should say the metals. So broadly speaking, we can divide materials into 2 broad categories. One which are having free electrons, others which don't have free electrons, right? So just a moment, why this is not going? Okay, fine. So we can divide them into 2 categories: metals, or those which has free electrons, and then those which don't have free electrons, which we can call insulators or even semiconductors. They are also part of, we can say, somewhere in between, although, but we can say at absolute 0 Kelvin, metals will have free electrons to roam around, or at even low temperatures. But insulators and semiconductors are those which don't have free electrons. So insulators are different. How to deal with insulators is a different aspect. One such aspect we have seen, okay, how we can understand, say, thermal properties, rather specific heat of insulators, right? So there we have seen that example of quartz and sodium chloride, right? That how specific heat of quartz and sodium chloride do match with those predictions based upon Debye model, right? And this is because
the what you call insulators have only contribution to specific heat coming from atomic vibrations. But in metals, the free electrons, rather the electron gas, also has a contribution to specific heat. So what is the contribution of electron gas to the specific heat? So that is the part of this topic in this unit, and this is very important. We'll be talking about that Ohm's law kind of stuff, then Hall effect, Widman-French law. All these are related to metals. So till here is up to this point is free electron theory. Means electrons are free as if they don't have any interaction. I'll be doing that in the next slide as well. And I hope you remember we had a discussion on that topic in earlier lecture as well. That okay, actual Hamiltonian for electron in a real solid is very complex. But then if we ignore all kind of interactions which electron is facing inside a solid, then that kind of theory is called free electron theory. So the contents which I have highlighted here actually belong to free electron theory. Means up to here, we talk of free electron theory and what are the predictions within free electron theory. You will see that many of the things of free electron theory are really very amazing, and they seems to work, and many results do match with experiments. But there are certain failures as well. So this onwards, we will be trying to just kind of talk about what were the failures of free electron theory, and then how we tried to get rid of those failures, and how we slowly start to bring into picture interaction of electron with the periodic potential. So mainly this component, this remaining component, talks about how we can try to incorporate electron lattice interaction. Lattice means interaction of electron with periodic potential. And still, we shall be focusing here on static lattice approximation. Static lattice approximation. Okay? Means we shall be assuming, what is the meaning of this is that, okay, electron would be interacting with periodic potential, but then we don't assume the potential to be changing with time. Static lattice approximation. This is a simple thing. Suppose this is atomic nucleus. This is how the potential looks like. Suppose this is very, okay, let me not get into that here, right here. Let's go to the next slide, then we will be talk about that. So this component talks about, the remaining unit will be talking about how we can try to fix things which were not well within free electron theory. Again, that same slide from previous lectures, I just brought it here to give you a quick overview again. You know, that total Hamiltonian for electron in a solid looks very complicated like this. This one is kinetic energy term. We already have talked about this. Electron nuclei interaction energy, Coulomb type potential energy, then electron-electron interaction energy. This term is way complicated, so we won't be talking about that right here. But yes, this is something which needs more approximations, and I don't think you will be taught this in this course. This is maybe somewhere else. If you happen to do a course in some advanced condensed matter physics or some many body theory, then you will be talking about this thing in more detail, to be very frank. So basically this unit mainly focuses on these two parts, and not that too, not exactly, but in a very approximate way. Approximate means main thing is, okay, if I ignore everything else, means let me ignore these last two terms, means electron nuclei potential energy and electron potential energy, then we are talking of free electron theory or Drude's theory even. I will be talking about that as well. What is the difference between Drude's theory and free electron theory, Sommerfeld free electron theory? And if we then try to incorporate or bring into picture this second term, middle term rather, into picture, then we talk of those topics like this one sitting here. Sorry.
Yeah. This Karman boundary conditions, we already have discussed it, but now we will be talking about them in context of electron gas. Cronin Penny model was one such thing, empty lattice approximation, and all those things. So, I mean, these are the kind of topics which try to incorporate this electron nuclei interaction, how electrons are interacting with nuclei arranged in a solid, and we shall be talking about periodic solid mainly. Okay, so what is the meaning of, or what is the idea of this? Why is static lattice approximation important? So if you see a periodic lattice, let us assume that in a periodic solid, let us assume this is a one-dimensional periodic crystal. Then what kind of potential an electron sees because of these are suppose atomic nuclei. These are atoms, let us say. Then atoms has two kind of electrons. Say, let us say this is an atom. It has an nucleus. Then it has core electrons. We could say these are the core electrons very close to the nucleus or around the nucleus. Then you have some valence electrons. There are two variety of electrons in a broadly. I mean, the electrons in an atom can broadly be divided into two categories: core electrons and valence electrons. Then these core electrons are the electrons which doesn't participate much in chemical processes like atomic bonding, conduction process, optical properties. Much role is they don't have a much role in those kind of processes. So, okay, I hope somebody is not trying to join. Fine. So, what is the idea of this static lattice approximation is that let us assume this is your atomic nucleus. Each one of these circles which I have drawn, these are atomic nucleus and core electrons together, let us say. And then valence electrons can roam around in the solid like this. I mean, they can move here and there, something like this is the idea. Then what is the idea of free electron theory? That there is no potential at all. That's what is Drude theory or Sommerfeld theory. But then when we talk of applying potential or realizing or trying to incorporate the potential which electron sees because of these atomic nuclei, that potential can be seen to be simply like a Coulomb type of potential. So this is how the potential should be, something like this. It is 1 upon r kind of potential. As the electron goes away from the atomic nucleus, it faces 1 upon r. As r approaches 0, so there is a divergence in the potential. Something like this is the potential which an electron see. This is sort of periodic potential, okay? Because atoms are periodically arranged. Now, why static lattice approximation is very, very important and I would say unavoidable part is because if I assume these atoms to be vibrating about their mean position or moving, then this potential we can't fix. Means the function or mathematical description of this potential can't be fixed to a well-defined mathematical function. In general, then it has to be a function of time, right? Which will complicate our life, and we will almost be. It will almost be impossible to solve this kind of problem. So that is why people thought of an idea that, okay, let us think of this potential to be fixed, or rather, let us assume the atomic lattice to be static. And that is why this static lattice approximation is important in many, many, many areas. But yes, it fails in some aspects. Then that is where we use those harmonic approximation and harmonic terms and so on. So for this unit, I won't be exclusively stating it, but what I will be using directly or indirectly is static lattice approximation. Whenever we are saying we are fixing periodic potential for an electron in a solid, that means we are using static lattice approximation. Means we are ignoring any kind of atomic vibrations. How to take care of atomic vibrations? We just have seen one demonstration in the previous unit. Then, of course, depending upon the situation, there may be more rigorous theories required for that. But so far, this course is concerned, we shall be talking only within static lattice approximation. Is this clear up to this point? I mean, could I make the point clear to you? Is this okay? Or any question? Yes, sir. Yes.
कोई सवाल है किसी का इसमें? एनी कंफ्यूजन हो? हाँ सर. Okay. So that is what is the idea of that static lattice approximation. So I would recommend you to go to this book by Ashcroft and Mermin, very well-known book. और ये जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, ये मैं रेकमेंड करूंगा इस किताब से आप पढ़ें, क्योंकि बहुत सारे मतलब ये आपको मिल जाएगा वैसे बहुत सारी बुक्स में ड्रूड थ्योरी, बट देन जिस अच्छे तरीके से इसमें दिया है आपको और जगह नहीं मिल पाएगा, बहुत रफ सा दे दिया जाता है. So this book covers it very beautifully and many detailed aspects of this Drude's theory. So I would recommend you to go to this book and read this chapter of this book regarding Drude theory of metals. यहाँ पे मैं एक क्विक ओवरव्यू आपको दूंगा ड्रूड थ्योरी के बारे में. उसी चैप्टर से मैंने काफी सारा ये मटेरियल लिया है. तो कि भाई ओके व्हाट ऑल इज देयर अंडर ड्रूड थ्योरी, ठीक है. सो बेसिक अजम्पशंस, रिलैक्सेशन टाइम क्या चीज होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हॉल इफेक्ट बेस्ड अपॉन ड्रूड थ्योरी. सो हम ये नहीं कह सकते कि फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी वाज ए फेलियर. आई मीन कुछ भी तो नहीं ले रहे उसमें, हम इलेक्ट्रॉन्स का इंटरेक्शन नहीं ले रहे किसी के साथ भी, न्यूक्लियाई के साथ भी नहीं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन भी नेग्लेक्ट कर रहे हैं. बट इवन आफ्टर दैट दिस थ्योरी कुड एक्सप्लेन मेनी थिंग्स, लाइक हॉल इफेक्ट के बारे में कुछ बोल सकने की पोजीशन में थी, एसी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में, ओम्स लॉ के बारे में बहुत कुछ ड्रूड थ्योरी से हमें आइडिया मिला. ये थ्योरी क्यों इतना पॉपुलर हुई या क्यों इतना अच्छे से एक्सप्लेन कर पाती थी चीजों को, वी विल ऑल्सो बी टॉकिंग अबाउट दैट. Despite neglecting so many things, it could explain many things. Why? So we will be talking about that also to some extent. So okay, this is what is the basic idea behind the Drude theory. So Drude theory के हिसाब से the whole solid is actually assumed to be made up of actually an atom. Same चीज जो मैं आपको बताया, core electron, valence electron, right? And then atom has a nucleus. So this is what is depicted here in this figure. These are like core electrons here, and these are like valence electrons. So electrons in an atom can primarily be divided into three categories: core electrons, valence electrons, two categories, and then third is atomic nucleus, of course. That's fine. Then whenever many atoms come together to form a solid, this right hand side figure, what happens that they do form some kind of bonds. Now kind of bondings we have studied. Mainly what we mean here is this kind of description is best suited for metallic bondings. So ये जो Drude model है, Drude model का assumptions हैं, वो बेस्ट कहाँ पे फिट होंगे? मेटल्स के केस में, कि भाई ओके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं दे फॉर्म ए काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉन सी. ये जो बैकग्राउंड में हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं आपको दिख रही, दे आर फॉर्मिंग लाइक ओके द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर फॉर्मिंग लाइक इलेक्ट्रॉन सी, एंड उसके बीच में एटॉमिक न्यूक्लियाई कुछ इस तरह से हैं, एटॉमिक न्यूक्लियाई एंड कोर इलेक्ट्रॉन्स. न्यूक्लियस इसमें बहुत बड़ी शेप का बना दिया है, सो डोंट वरी अबाउट इट. उसमें आप मतलब डायमेंशंस पे ना जाएं, कंसेप्ट इसमें रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई है. सो एटम्स किस तरह से प्लेस्ड हैं, पीरियोडिकली भी हैं अगर, तो इट इज दे आर प्लेस्ड एज इफ दे आर सिटिंग इन ए sea of electrons, sea of valence electrons rather, and then they are located at specific positions as per the structure of the solid. तो मेटल में मींस एटम में दो प्रकार की श्रेणियां थी इलेक्ट्रॉन्स की, कोर इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन. और मेटल में या सॉलिड में हमने सेम चीज तीन प्रकार की कैटेगरीज में बांटे. मींस तीन क्या, आई मीन यू हैव न्यूक्लियाई, दैट इज फाइन, दे हैव नॉट मच रोल हियर, दे आर जस्ट एक्टिंग लाइक द सेंटर्स टू न्यूट्रलाइज ओवरऑल मटेरियल, तो न्यूट्रल बनाए रखने के लिए काम करेंगे. कोर इलेक्ट्रॉन्स, उनका भी कोई बहुत रोल नहीं है सिग्निफिकेंट. एंड देन ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे उनको अब हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ना बोल के वी आर कॉलिंग conduction electrons, because these electrons take part in conduction process and they are very crucial elements for conduction and similar kind of mechanism. ठीक है. And then
ड्रूड थ्योरी के हिसाब से, मैं बहुत ज्यादा नहीं, मतलब आई एम नॉट टॉकिंग मच डिटेल्स। ड्रूड थ्योरी में या इसके हिसाब से, व्हेन यू विल रीड दैट फर्स्ट चैप्टर, one of the very crucial quantity as per Drude theory is electron density. तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है ड्रूड थ्योरी के हिसाब से, विच इज नथिंग बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। दिस इज नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है इस तरह से हम निकाल सकते हैं। और ये प्रैक्टिकली किस तरह से निकाल सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इस पे भी, नंबर डेंसिटी पे भी अलग अलग तरह के क्वेश्चन। So, okay, suppose you have a simple cubic unit cell. So something like this, maybe you can draw a short unit cell like this. इस तरह से, just एक rough idea. यहाँ पे एक एटम होगा, ठीक है, सिंपल क्यूबिक यदि है, एंड सपोज दिस एटम्स, जो भी आपके एटम्स हैं, सिटिंग एट कॉर्नर्स ही होंगे, क्यूब है, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है, तो मोनोटॉमिक बेसिस है मान लीजिए। तो उस केस में सपोज ईच एटम कॉन्ट्रीब्यूट्स समथिंग लाइक, स्मॉल एन से हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लिख रहे हैं, तो ईच एटम मान लीजिए इज मोनोवेलेंट, एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है हर एक एटम। तो सिंपल क्यूबिक का लैटिस कांस्टेंट मान लीजिए ए है। सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आप कैसे निकाल सकते हैं, एन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो इफेक्टिवली सिंपल क्यूबिक में एक ही एटम होगा, बिकॉज ऑल एटम्स आर एट कॉर्नर, सो 1/8 of every atom is inside the cube, right, inside the unit cell. So one atom, and each atom कितने इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करता है, मान लीजिए एक ही इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सेल, सो विच इज ए क्यूब, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल से करना है। दिस शुड गिव यू द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये आएगा नंबर, और यूनिट्स क्या होंगे इसके, नंबर एन पर यूनिट वॉल्यूम, पर सेंटीमीटर क्यूब, पर मीटर क्यूब, व्हाटएवर, मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब या पर सेंटीमीटर क्यूब, कुछ इस तरह से आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। ओके, दैट इज द सिंपलेस्ट केस। दूसरा केस क्या हो सकता है कि भाई सिंपल क्यूबिक ही है, सेम चीज रहती है, मान लीजिए सिंपल क्यूबिक, सॉरी, ये इस तरह से सिंपल क्यूबिक ही रहता है, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दो है, मान लीजिए हमारे पास पर एटम 2 इलेक्ट्रॉन देता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन, लाइक सोडियम, सोडियम में बैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ही होगा, ठीक है। कैल्शियम फॉर एग्जांपल may have will contribute 2 electrons, 2 valence electrons। तो उस केस में क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल 1 ही था, पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, ईच एटम 2 डिवाइडेड बाय अगेन वॉल्यूम ऑफ द सेल। इस तरह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकाल सकते हो। इन जनरल, ओके, जनरल करने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लीजिए एफसीसी है आपके पास, अभी दूसरा केस मान लीजिए क्या है, एफसीसी। तो इसमें एटम्स आपके यहाँ पे हैं, along with this फेस के सेंटर्स पे भी हैं, समथिंग लाइक दिस, यू कैन ड्रॉ, you know what is एफसीसी। तो एफसीसी में इफेक्टिवली कितने एटम्स होते हैं यूनिट सेल में, देयर आर 4 एटम्स इफेक्टिवली। सो क्या आएगा उस केस में, एफसीसी के केस में 4 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूटेड बाय ईच एटम, से whatever, I mean, say let us, अगर सोडियम ही है मान लीजिए, तो 4 into 1 divided by again volume a cube। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकाल सकते हैं। इन जनरल आप कैसे करेंगे, नंबर डेंसिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, ओके, इनटू इलेक्ट्रॉन्स contributed by each atom, right, divided by volume of the unit cell. That should be the number density of the electrons in general, ठीक है। तो ये जो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये बहुत क्रूशियल पैरामीटर है किसी भी मेटल की प्रॉपर्टीज को समझने के लिए। तो पहले तो हमें ये कैलकुलेट करना आना चाहिए कि नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये एशक्रॉफ्ट मर्मिन की किताब में बहुत अच्छे से वर्कआउट करके एक बहुत बड़ा टेबल सा भी बनाया गया है, बहुत सारे एग्जांपल्स उसमें डिस्कस किए हैं, तो वो आप एक बारी ध्यान से पढ़ लें, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे हम निकाल सकते हैं, ठीक है।
उसी में ही नंबर डेंसिटी को लिखने का एक दूसरा तरीका इस तरह से भी निकाला है, इसको आप देख लेना कैसे होता है. So this describes actually the number density of electrons in per centimeter cube. So ये किस फॉर्म में है ये? पर सेंटीमीटर क्यूब में अगर आप उसको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, वहां एवोगाड्रोस नंबर वगैरह आएगा, तो ये आपका 10⁻²⁴ इस तरह से आ जाएगा नंबर. If Z is the what you can call contribution each atom gives to the valence electron, तो Z मतलब मान लीजिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन है. फॉर एग्जाम्पल सोडियम के लिए Z हम बोल सकते हैं 1 होगा, 11 नहीं 1. वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? कैल्शियम के लिए इट कैन बी समथिंग लाइक 2. एल्यूमिनियम के लिए इट विल बी समथिंग लाइक 3. तो इस तरह से अलग अलग केस के लिए अगर आपको Z पता है तो आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर सेंटीमीटर क्यूब में लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं, वेयर रो m is mass density. What is that? Is mass per unit volume. वो भी आप निकाल सकते हैं. मतलब mass density अगर आपको दिया है या mass each atom, अगर आपको वॉल्यूम ही पता है then mass of each atom आप पुट कर सकते हैं, उसके हिसाब से mass density निकाल सकते हैं. So जो भी दिया है accordingly divided by A. What is A here? Is A is the atomic mass of the element. ठीक है. अगर आपको मास डेंसिटी दी है किसमें, इस केस में मास डेंसिटी किसमें होगी? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आपको मास डेंसिटी लेनी है. अगर आप लेते हैं तो आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसके कोरस्पॉन्डिंग निकाल सकते हैं ये फॉर्मूला इस्तेमाल करके. ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला, आई मीन इट्स नॉट समथिंग वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू ऑब्टेन. आप इसको थ्योरेटिकली बड़े आराम से निकाल सकते हैं. आप एवोगाड्रोस का कॉन्सेप्ट लगा लीजिए और मास पर यूनिट सेल के हिसाब से निकाल लीजिए कि कितने एटम्स आते हैं यूनिट सेल में. उस हिसाब से यू कैन ट्राई दिस एंड ऑब्टेन दिस थिंग. ठीक है. ये एशक्रॉफ्ट मर्मिन में लिखा हुआ है, मैं इसमें भी फंसता नहीं हूं ज्यादा, क्योंकि आई बिलीव दैट यू कैन डू इट योरसेल्फ. फिर भी किसी को प्रॉब्लम लगे सो यू कैन कम बैक एंड डिस्कस इट विद मी. अच्छा, एक और बड़ा क्रूशियल पैरामीटर होता है ड्रूड थ्योरी के हिसाब से या थ्योरी ऑफ मेटल्स में, और वो पैरामीटर होता है आरएस पैरामीटर. वी डिफाइन दैट एज आरएस पैरामीटर. ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है. बहुत सारे थ्योरेटिकल पेपर्स में आप चार्ज डेंसिटी की बात नहीं करते हुए देखेंगे लोग, दे विल बी टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ आरएस पैरामीटर. तो वही आरएस पैरामीटर के बारे में भी एशक्रॉफ्ट मर्मिन में बहुत अच्छे से बताया है. हाउ वी डिफाइन आरएस पैरामीटर इज समथिंग लाइक दिस, कि भाई अच्छा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको पता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. अगर मैं इसका इनवर्स कर देता हूं, मींस आई टेक वॉल्यूम पर इलेक्ट्रॉन. सो इट इज एज इफ ये आपका सॉलिड है, इसमें मान लो 50 इलेक्ट्रॉन है सपोज, व्हाटएवर. ठीक है. और टोटल वॉल्यूम सॉलिड का V है. तो वॉल्यूम पर इलेक्ट्रॉन मींस इफेक्टिवली एक इलेक्ट्रॉन के लिए कितना वॉल्यूम है मेरे मेटल में. ठीक है. समथिंग लाइक दिस. उसको निकालूं और उस वॉल्यूम को मैं स्फेरिकल एज्यूम कर लूं कि भाई चलो ये मान लेते हैं कि इफेक्टिवली इलेक्ट्रॉन एक स्फेरिकल वॉल्यूम में रिस्ट्रिक्टेड है कुछ इस तरह से, और उस स्फीयर की रेडियस में डिफाइन कर देता हूं, मान लीजिए RS. तो वो जो रेडियस होगी उसको मैं कहां से निकाल सकता हूं? वॉल्यूम पर इलेक्ट्रॉन से, isn't it? So that will be, I mean as if 4/3 pi into RS cube किसके बराबर हो? V by N. So वहां से जो RS का वैल्यू आएगा that is called the RS parameter. So RS parameter डायरेक्टली इनडायरेक्टली किससे रिलेटेड है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से, पर इनवर्स रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है RS पैरामीटर. किस तरह से? मींस अगर RS पैरामीटर किसी ने बोला है ज्यादा है तो मींस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है. ऑफ कोर्स मींस इफेक्टिव वॉल्यूम पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी. और हाईली डेंस इलेक्ट्रॉन, अगर हाईली डेंस है कोई मटेरियल, मतलब जिसमें बहुत सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उस केस में RS पैरामीटर बहुत हाई होगा, बहुत लो होगा. N if it is very high, you can see from here, if N is very high, RS will be very low. ठीक है. तो इस तरह से this RS parameter also is a very crucial parameter, and this will
act as a very key parameter to describe the electron density. तो most of the theoretical papers RS में बात करते हैं, not directly in terms of electron density. So वो भी आपके लिए एक mystery नहीं रहनी चाहिए, RS पैरामीटर एकदम से कहाँ से आ गया. So इसको भी थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा. And here is the table which I have taken from Ashcroft Mervyn again. और यहाँ पे अलग अलग मेटल्स के लिए इसने RS पैरामीटर्स कैलकुलेट करे हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कैलकुलेट करी है. लिथियम फॉर एग्जांपल, यू कैन टेक द डेटा, गूगल ही कर लेना लिथियम का स्ट्रक्चर क्या होता है, FCC. एक बारी एक दो खुद कैलकुलेट करके देखना आप, एक दो वैल्यूज इसकी, कम से कम 2-3 वैल्यूज खुद अपने आप से करके देखिएगा सभी, और वो मैं एज एन असाइनमेंट भी डाल सकता हूँ. अच्छा, तुम्हारी एक असाइनमेंट अपलोड करने को रहेगी, आज ही करके दूंगा मैं, ठीक है. वो क्या बोलते हैं उसको, स्पेसिफिक हीट वाला, ठीक है. तो हाँ, मेन चीज है कि यू शुड एक्चुअली बी इन पोजीशन टू ऑब्टेन दीज वैल्यूज. तो आप एक्सपेरिमेंटली लैटिस कांस्टेंट ले लीजिए किसी भी मटेरियल का, और स्ट्रक्चर देख लीजिए कि क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ही निकालना है. तो आप देखने की कोशिश करें कि ये नंबर निकालने की स्थिति में आप होने चाहिए. स्पेसिफिकली ट्राई सिंपल एग्जांपल्स लाइक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सभी दिए हुए हैं यहाँ पे देखो, सोडियम से पोटेशियम, कैल्शियम, है ना. और ये इसने टेम्परेचर भी बताए हुए हैं कुछ. वाई टेम्परेचर? क्योंकि देयर मे बी स्मॉल इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. वाई सो? क्यों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे फर्क पड़ सकता है टेम्परेचर का? चलो कौन बताएगा मुझे? क्या लगता है आप लोगों को, हाउ टेम्परेचर माइट बी अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी? एनी गेस फ्रॉम एनीवन? नो? अरे अभी कल ही तो पढ़ा थर्मल एक्सपेंशन. भाई अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा? लैटिस कांस्टेंट चेंज हो सकता है. लैटिस कांस्टेंट चेंज हो सकता है तो क्या वॉल्यूम चेंज होगा? पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो फिक्स है ना. सॉलिड जो भी ले रखे हैं आप, पोटेशियम या सोडियम, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो फिक्स हैं. सो वो फिक्स हैं तो देयर मे बी स्लाइट इंपैक्ट ऑफ दैट ऑन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. आप लोग मुझे सुन पा रहे हो क्या? Am I online there Sir. or not? Yes, sir. ठीक है. तो इस तरह से आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैलकुलेट करें और RS पैरामीटर भी कैलकुलेट करने की कोशिश करें. ये एंगस्ट्रॉम्स में है और ये वैल्यू है RS पैरामीटर की बोर रेडियस में, A0. सो आप अकॉर्डिंगली एंगस्ट्रॉम से बोर रेडियस में डिवाइड कर सकते हो. ये क्या होता है एंगस्ट्रॉम बोर रेडियस? बहुत सिंपल सा रिलेशन होता है ना. क्या रिलेशन होता है बोर रेडियस और एंगस्ट्रॉम में? बोर रेडियस इज लाइक हाफ एंगस्ट्रॉम, क्लोज टू हाफ एंगस्ट्रॉम, है ना. तो आप देख सकते हैं वैल्यूज लगभग डबल हैं, नॉट एग्जैक्टली हाफ बट क्लोज टू हाफ होता है, इसलिए वैल्यूज लगभग डबल हैं. तो दैट्स समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट अप टू हियर. मतलब यहां तक वो बात करता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे निकाल सकते हैं. देन कम्स द बेसिक assumptions ऑफ ड्रूड मॉडल, एंड द assumptions कुछ इस तरह से हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं किसी मटेरियल में वो इंटरेक्ट नहीं करते ना तो पीरियोडिक पोटेंशियल से या एटॉमिक न्यूक्लियाइज से, ना कि अदर इलेक्ट्रॉन से. मींस व्हाट वी आर यूजिंग इज फ्री इलेक्ट्रॉन अप्रोक्सीमेशन. क्या यूज कर रहे हैं हम? फ्री इलेक्ट्रॉन अप्रोक्सीमेशन, है ना. कि इलेक्ट्रॉन ना तो ओके, दो चीजें हैं यहाँ पे, फ्री इलेक्ट्रॉन अप्रोक्सीमेशन एंड इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रॉन अप्रोक्सीमेशन. सो इलेक्ट्रॉन्स, the neglect of electron-electron interaction in between the collisions is known as independent electron approximation. मतलब इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ स्कैटर नहीं करेंगे या उनसे इंटरेक्ट नहीं करेंगे एक्सेप्ट फ्रॉम एट द पॉइंट ऑफ कोलिजन. कोलाइड तो कर रहे हैं वो एक दूसरे से, रैंडमली मोशन में है, तो उस केस में हम कहेंगे कि अच्छा तभी इंटरेक्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे. मींस वो जो हमारा हैमिल्टोनियन था सेकंड स्लाइड में जो मैं दिखाया था, वो टर्म्स दोनों ही जीरो होंगे. मतलब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन को अगर आप निगलेक्ट कर रहे हो तो उसको हम कहेंगे इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रॉन अप्रोक्सीमेशन, और अगर इलेक्ट्रॉन आयन इंटरेक्शन को निगलेक्ट कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन अप्रोक्सीमेशन. तो दोनों ध्यान में रखें आप, ठीक है. इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रॉन अप्रोक्सीमेशन और फ्री इलेक्ट्रॉन अप्रोक्सीमेशन दोनों में थोड़ा फर्क है, तो आप इसको
नोट करें, और कभी भी आपसे पूछा जा सकता है, छोटी छोटी चीजें हैं, सो यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज्ड ओवर दैट। दूसरा अजम्पशन क्या है कि भाई कोलिजन्स जो हैं दे आर इंस्टेंटेनियस इवेंट्स, एकदम से होते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि वो स्लोली इंटरेक्ट करेंगे तब कहीं कोलाइड करेंगे, स्कैटरिंग। सो अज्यूम ये किया जाता है कि दे आर इंस्टेंटेनियस इवेंट्स। सेकंड थिंग इज दिस वन, दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट अजम्पशन बाय ड्रूड। वही इसका कारण क्या है कि भाई इससे हम इंटरेक्शन टर्म्स को अवॉइड कर सकते हैं। तो हम कोलिजन से ये मानेंगे कि जब भी कोई दो इलेक्ट्रॉन या जब भी कोई इलेक्ट्रॉन अगर ट्रैवल कर रहा है, वो कोलाइड करता है, तो वो थोड़ी देर के लिए टकराया, और कोलिजन का इफेक्ट हम किस फॉर्म में देखेंगे कि भाई उसके बाद उस इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो रैंडम हो जाएगी, किसी भी डायरेक्शन में वो जा सकता है। सो इट विल लूज इट्स व्हाट यू कैन कॉल दैट इफेक्टिव वेलोसिटी या एवरेज वेलोसिटी, जिसको हम क्या कहते थे, ड्रूड थ्योरी आपने पढ़ी होगी, क्या कहते हैं उसमें? ड्रूड थ्योरी में एक, जब आपने लोअर क्लासेस में पढ़ी होगी, एक वेलोसिटी की टर्म आती है, उसको क्या बोलते थे हम? यस, कोई बताएगा? मीन फ्री पाथ वेलोसिटी। मीन फ्री पाथ वेलोसिटी। हाँ, मीन फ्री पाथ वेलोसिटी या एवरेज वेलोसिटी उसको बोल सकते हैं, मीन फ्री वेलोसिटी, ठीक है। कि वो दो स्कैटरिंग इवेंट्स के बीच में कितनी वेलोसिटी मैक्सिमम अटेन कर सकता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो कोलिजन का सिर्फ ये इफेक्ट है कि वो वेलोसिटी आफ्टर एन इलेक्ट्रॉन सफर्स ए कोलिजन वो जीरो हो जाएगी बस। तो कोलिजन इंस्टेंटेनियस होते हैं मतलब, और कोलिजन हम किस फॉर्म में डिपिक्ट कर रहे हैं कि वो जो मीन फ्री वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रॉन की वो जीरो हो जाएगी बस। जैसे ही इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेगा, व्हाट यू कॉल, कोलाइड करेगा, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी, किस प्रोबेबिलिटी से इलेक्ट्रॉन जो है वो टकरा रहा है, मतलब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इलेक्ट्रॉन विल फेस कोलिशन, इट वाज फिक्स्ड और assumed by Drude to be depending upon something very interesting called tau, रिलैक्सेशन टाइम, एक नई टर्म उन्होंने कॉइन करी यहाँ पे। और ये जो टाउ है, हम ये बात कर रहे थे कि भाई ड्रूड मॉडल के रिजल्ट्स बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल से मैच करते हैं, तो क्या कारण है उसका? कारण यही है कि टाउ जो है एक फिटिंग पैरामीटर की तरह इस्तेमाल किया उन्होंने, कि भाई ओके, टाउ की टर्म्स में पहले रिजल्ट्स निकाल लो, फिर आप उसको पुट करो एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट से, रेजिस्टिविटी फॉर एग्जांपल हम निकाल लेते हैं, तो वो टाउ जो है, टाउ इज सॉर्ट ऑफ अ फिटिंग पैरामीटर। बट हाँ, टाउ एक बार अगर आपके पास आ जाता है तो और बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन कर सकते थे हम उससे। सो टाउ इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग विच वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर सक्सेस ऑफ दिस मॉडल। तो ये जो रिलैक्सेशन टाइम है, इसका एक तो एक्सपेरिमेंटल तरीका है कि भाई थ्योरेटिकल एक्सप्रेशन पुट कर दो आप, ये जैसे, ओके लेट मी शो अप दैट, कि भाई कंडक्टिविटी इतना होना चाहिए किसी मटेरियल का, ड्रूड मॉडल के हिसाब से ये निकाला था उसने। आई एम नॉट गेटिंग इनटू डेरिवेशन ऑफ दिस, क्योंकि ये बहुत किया होगा आपने लोअर क्लासेस में। और एक्सपेरिमेंटली ओम्स लॉ से आप V इक्वल टू आई आर से कंडक्टिविटी निकाल लीजिए, V इक्वल टू आई आर लगा के, ठीक है। V इक्वल टू आई आर लगा के कंडक्टिविटी निकाल लेंगे तो आपके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी मटेरियल की पता होगी, जिस भी मटेरियल के लिए मैं मेजरमेंट कर रहा हूं, करेक्ट। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ये फिक्स होता है, n हमें नोन है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आई जाएगी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स होता है। तो कंडक्टिविटी अगर हमें एक्सपेरिमेंटली मिल जाए कंडक्टिविटी, तो हम टाउ निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो टाउ है, स्कैटरिंग टाइम, ये तो है एक्सपेरिमेंटल तरीका टाउ को निकालने का। दूसरा थ्योरेटिकल वे भी है, टाउ को हम निकाल सकते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं। द थ्योरीज आर रादर कॉम्प्लेक्स, बट हाँ क्वालिटेटिव एक ओवरव्यू के तौर पे अगर हम देखें तो टाउ हम किस तरह निकाल सकते हैं। वी ट्राई टू टॉक ऑफ स्कैटरिंग मैकेनिज्म्स, देन वी ट्राई टू टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉन फोटॉन स्कैटरिंग, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग, और किस तरह से वो स्कैटरिंग को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, ओमकलप स्कैटरिंग, नॉर्मल स्कैटरिंग, वो सभी बातें आती हैं वहां पे जहां पे हम टाउ की डिटेल्ड कैलकुलेशन के बारे में बात करते हैं। सो ये टारगेट हमेशा रहता है कि भाई टाउ एक्सपेरिमेंटल जो है, एक्सपेरिमेंटल क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं थियोरेटिकली भी, और मैच कराने की कोशिश कर सकते हैं, और देखते हैं कि कौन कौन से मैकेनिज्म सिग्निफिकेंट हैं।
कौन कौन से स्कैटरिंग मैकेनिज्म्स हैं उस मटेरियल में। तो थ्योरी में आप कौन कौन सी टर्म डालते जाएंगे और उन टर्म में से जिन टर्म्स को डाल के वो बेस्ट मैच करेगा एक्सपेरिमेंटल के साथ, हम कह सकते हैं कि वो स्कैटरिंग प्रेजेंट है उस मटेरियल में। सो दीज आर सर्टेन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स। और दूसरा, इलेक्ट्रॉन्स थर्मल इक्विलिब्रियम अटेन कर लेते हैं अपनी सराउंडिंग के साथ। दैट वाज द अनदर अजम्पशन ऑफ ड्रूड मॉडल। तो ये यूनिट आप ड्रूड मॉडल वाला बहुत ध्यान से पढ़िए, और इसमें आपको क्या क्या चीजें जो है वो क्लियर नहीं हुई। इसने टाउ के बारे में बहुत अच्छे से बात करी है, डिटेल में बात करी है। टाउ को आप देखिए और ट्राई टू ऑल्सो हैव सम आइडिया ऑफ हॉल इफेक्ट। इसी सेम इस चैप्टर में ही हॉल इफेक्ट के बारे में भी बात किया है, कैसे ड्रूड थ्योरी जो है हॉल इफेक्ट को एक्सप्लेन करती है। और फिर हम, वंस यू आर कंफर्टेबल विद ड्रूड थ्योरी, देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट सोमरफील्ड थ्योरी। वो हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे, बट मैं चाहूंगा कि तब तक आप ये पढ़ के आए, और कोई भी आपके क्वेश्चंस या डाउट्स हैं ड्रूड थ्योरी वाले चैप्टर से तो आप डिस्कस करें, ताकि आगे हम एक स्टेप जब जाएं तो पिछली वाली चीजें मिस ना हो जाएं और कनेक्शन हम इस्टेब्लिश कर पाएं। Okay, so well, that's all for today. Any question, if at this point you can ask. If not, then that's all for today. Attendance लगा दो फटाफट अपनी सभी। सर जो हमने आरएस पैरामीटर यूज किया है, हाँ जी। तो उसकी कोई मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है कि जैसे हम मेटल या सेमीकंडक्टर या फिर इंसुलेटर में बात करें, तो ये तो जनरली हम ये बात करें कि आरएस का मतलब वही हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन को एक रेडियस मिली है। तो देखो भाई, मेटल में तो बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं, मतलब डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इंसुलेटर के लिए आरएस क्या होना चाहिए? उसमें तो फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। सो आइडियली स्पीकिंग इंसुलेटर के लिए आरएस क्या होना चाहिए? इट इज लाइक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, है ना? वो तो होती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। सो इंसुलेटर्स के लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 हो जाएगी, यस isn't सर। it? यस तो सर। आरएस पैरामीटर इनफाइनाइट हो जाएगा। तो मतलब इफ यू आर गोइंग टू वेरी वेरी लार्ज आरएस पैरामीटर, यू आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स इंसुलेटर्स, ठीक है? और वेरी वेरी लो इन आरएस पैरामीटर की बात कर रहे हैं अगर आप, दैट मींस यू आर टॉकिंग अबाउट हाईली डेंस, मतलब व्हाट यू कॉल देम एज वेरी स्ट्रांगली इंटरेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गैस। क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन बहुत स्ट्रांगली इंटरेक्ट कर रहे होंगे। तो दो सिस्टम्स आर आल्सो नोन एज स्ट्रांगली कोरिलेटेड सिस्टम्स, है ना? बहुत स्ट्रांग कोरिलेशन भी होंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वेरी हाई है। So RS parameter being very low systems, they are also very interesting and they have many interesting properties. बहुत interesting physics होता है उसका। So RS parameter की ऐसे कोई limit, मतलब जो आप बोल रहे हो वो कुछ नहीं है। I mean, you try to scan over the range of RS and then कौन कौन सी रेंज में क्या क्या प्रॉपर्टीज मिलती हैं, वो अपने आप में इलेक्ट्रॉन गैस का अपना एक फिजिक्स है। मतलब you will find out people working on electron gas, strongly correlated electron gas, homogeneous electron gas, non-homogeneous electron gas, वो अपने आप में एक वो है। और मैनी बॉडी थ्योरी इसमें काफी रोल प्ले करती है, इंपॉर्टेंट। तो हाँ, मतलब दैट्स व्हाट आरएस पैरामीटर इज। और अलग अलग रेजिम में अलग अलग तरह से बिहेव करेंगी, मतलब मटेरियल की प्रॉपर्टीज, ठीक है? यस या सर। और और सर इस हम्म टेबल में ये जो कुछ मटेरियल्स के लिए टेम्परेचर पे मतलब ये इन्होंने दिखा रखी है डेंसिटी, आरएस हम्म, पैरामीटर और आरएस बाई ए नोट, तो हाँ कुछ हाँ। मटेरियल्स पे बिल्कुल भी नहीं दिखा है इन्होंने। इसका मतलब इनकी जो नंबर डेंसिटी है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो डेटा कितने पे अवेलेबल था वो वहीं से लिया होगा उन्होंने, और कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि नहीं करेगी। डेटा क्या अवेलेबल है एक्सपेरिमेंटली, कहाँ किससे उन्होंने लिया हुआ है, दैट्स ऑल। डिपेंड तो इन प्रिंसिपल तो करनी चाहिए, ऐसा नहीं बोल सकते। सोडियम की तो उन्होंने 5 ही केल्विन पे दी है, किसी और टेम्परेचर पे थोड़ी ना दी है। यस सर। तो मींस इट डिपेंड्स कि किस टेम्परेचर पे लैटिस कांस्टेंट लिया होगा, वहां से इन्होंने आरएस पैरामीटर निकाला होगा। ये सिंपल या फिर कैलकुलेशन या है। फिर मतलब इसमें फिर लैटिस कांस्टेंट मैक्सिमम डेंसिटी निकाल रखी सर। है, नहीं नहीं नहीं, मैं मैक्सिमम डेंसिटी नहीं है। ये सिर्फ ये है कि लैटिस कांस्टेंट किस वैल्यू पे लिया होगा, दैट्स इट। क्योंकि ओके। लैटिस कांस्टेंट आ गया तो फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो पता ही है आपको, सोडियम एक ही देगा। सोडियम यस सर। बीसीसी होता है, तो बीसीसी है तो कितना देगा वो पता ही है आपको। तो अकॉर्डिंगली आप यस। निकाल ही सकते हो, फिर दैट्स नॉट अ बिग डील। तभी बोल रहा हूँ एक बार कैलकुलेशंस करो, फिर देखो ये नंबर क्या आते हैं।
Then Okay. try to take lattice constants at 2 different temperatures. कहीं ना कहीं गूगल करके मिल ही जाएंगे आपको. टेम्परेचर Yes, sir. डिपेंडेंस ऑफ लैटिस कांस्टेंट ऑफ सोडियम डाल लो या कैल्शियम, तो कहीं ना कहीं मिल जाएंगे. तो 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स पे निकालने की कोशिश करो. Then you can see what should be the variation of this RS पैरामीटर या N on temperature. वो भी देख सकते हो आप फिर. ठीक है. Okay, sir. हाँ, तो वहां से आ जाएगा. और कुछ? यस. Thank you, sir. और किसी का any other one, anyone else with question?